آج بدھ ہے، مئی کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کا مفاد مشترکہ ہے۔ منگل کو محکمہ خارجہ میں بریفنگ کے دوران پاکستان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ ہم دہشت گردی سے نمٹنے اور اپنے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری رابطوں کو فروغ دینا بھی ہماری شراکت داری میں شامل ہے۔ ویدانت پٹیل سے سکھ رہنما کے قتل کی سازش سے متعلق واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ پر سوال کیا گیا۔ ویدانت پٹیل کا کہنا تھا کہ ہم بھارت کی جانب سے اس معاملے پر کروائی گئی تحقیقات کی روشنی میں بھارت سے جواب دہی کی توقع کرتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے علاقائی سلامتی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا ارادہ کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بات ایک بیان میں کہی ہے، جو امریکہ کے معاون وزیر خارجہ جان باس کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی وفد کی پاکستان کے قائم مقام سیکریٹری خارجہ رحیم حیات قریشی سے ملاقات کے بعد جاری کیا گیا۔ منگل کو اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی سیکریٹری ایلزبتھ ہارسٹ اور پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم بھی شامل تھے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق معاون وزیر خارجہ جان باس کی قیادت میں پاکستان سے حکام سے ہونے والی ملاقات میں پاکستان کے اقتصادی استحکام کے لیے امریکی حمایت اور علاقائی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دو طرفہ ترجیحات سمیت متعدد علاقائی اور دو طرفہ امور زیر بحث آئے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ پر غور کر رہی ہے، جس کا مقصد اسکولوں سے باہر 2.60 کروڑ بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ وفاقی سیکریٹری تعلیم محی الدین وانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزارت تعلیم ملک بھر میں 4 برس کے لیے تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کی تصدیق کی، جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز شامل ہیں۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ٹکٹوں کے فروخت میں مبینہ گھپلوں پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایس ایل اور انٹرنیشنل میچوں کی ٹکٹوں کی فروخت میں کروڑوں روپے کی خرد برد کی گئی ہے۔ سینکڑوں ٹکٹوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پی سی بی میں ٹکٹوں کے مبینہ گھپلوں کی تحقیق کرنے والے ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور سرفراز احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایف آئی اے نے پی سی بی کے شعبہ ٹکٹنگ سے تمام ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیے ہیں، جن کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ بھارت کی سیکیورٹی فورسز نے منگل کو وسطی بھارت کے جنگلات میں لڑائی کے بعد کم از کم 10 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا۔ ماؤ نوازوں کا کہنا ہے کہ وہ غریب بھارتی کسانوں اور بے زمین مزدوروں کو ان کی زمینوں پر زیادہ کنٹرول دینے اور معدنیات پر زیادہ دعویٰ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔
रियासत छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कहा कि उन्होंने मंगल की सुबह होने वाली झड़प के बाद कम से कम 10 लाशें और कई हथियार बरामद किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने बुध के रोज इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गजा में मजीद इमदाद की तरसील पर जोर दिया, जबकि हमास पर जोर दिया कि वो एक ऐसा मुआहिदा कबूल करे जिससे लड़ाई रोक दी जाए। ब्लिंकन ने इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग से मुलाकात के दौरान कहा कि इंतहाई मुश्किल वक्त में भी हम एक जंगबंदी के लिए पुरअज़्म हैं जो यरगमालियों को अपने घर वापस ला सकेगी। उधर हमास इस पेशकश का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल गजा में अपनी जहरियत को आर्जी तौर पर रोक दे और 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए इसराइलियों के बदले में फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या यूसीएलए के कैंपस में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरों में बुध के रोज झड़पें हुई, जबकि अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटियां इसी तरह के मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। लॉस एंजलिस के महकमा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अफसरान को तैनात किया गया है ताकि नज्म नसक की बहाली में मदद मिल सके। यूसीएलए के चांसलर ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा है कि बहुत से मुजाहिरीन पुरअमन रहे। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में पुलिस ने मंगल की शाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया और कैंपस के मरकजी दरवाजों के बाहर मुजाहिरीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में बताया है कि सदर का ख्याल है कि कैंपस की इमारत पर जबरदस्ती काबिज होना एक बिल्कुल गलत तरीका है। उनका मजीद कहना था कि ये पुरअमन एहतजाज की मिसाल नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि सदर बाइडन को मुजाहिरीन के जज्बात का एहसास है, लेकिन इससे गजा में हमास के खिलाफ इसराइल की जंग की हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उनका कहना था कि सदर की यह भी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में हमारे कौमी सलामती के मफादात का ख्याल रखें, और इसका मतलब ये भी है कि वो उस खित्ते के लिए ऐसे फैसले करें जो उनके मफादात की हिमायत करते हों। यूनाइटेड एयरलाइंस ने बुध के रोज न्यूवर्क न्यू जर्सी से इसराइल में तल अवीव के लिए अपनी यौमिया परवाज की मनसूखी में 9 मई तक तौसी करते हुए कहा है कि वो हिफाजती जायजा मुकम्मल कर रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने एक बयान में कहा है कि हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और आने वाली तमाम परवाजों के बारे में अपने सारिफीन और अमले की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करते हुए फैसले करेंगे। यूनाइटेड एयरलाइंस ने 19 अप्रैल को इसराइल पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात की वजह से इसराइल के लिए अपनी परवाजें 2 मई तक मनसूख कर दी थीं। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि बुध के रोज जनूबी चीन के सूबे गुआंगडोंग में शदीद बारिशों के बायस हाईवे का एक हिस्सा मुनहदिम होने की वजह से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। गुंजानाबाद सनती इलाके गुआंगडोंग हालिया हफ्तों में तूफानी बारिशों की जद में रहा है, जिससे कुछ इलाकों में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हुई है। रूस ने बुध के रोज कहा कि उसने यूक्रेनी फौज के जनूबी ग्रुप के कमांड हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो ओडिशा की बंदरगाह पर वाक़ है। कीव ने बताया कि मिसाइल हमले में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने इस हमले के बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई, लेकिन कहा कि रूसी अफवाज पूरी फ्रंट लाइन पर अपनी पोजीशंस को बेहतर बना रही हैं। यूक्रेन के मुताबिक ओडिशा में रात भर के हमलों में रिहायशी इमारतों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जबकि जुनूबी मिलिट्री कमांड का कहना है कि इंतजामी और रिहायशी इमारतें, तिब्बी और तालीमी इदारे मुतासर हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आज 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
अमेरिका में लेबर डे यकम मई के बजाय सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अमेरिका में हर साल सितंबर के पहले सोमवार को विफाकी और बेशतर निजी इदारों में आम तातील होती है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों की खिदमत का एतराफ और अमरीकी मईशत में उनके किरदार को सराहना होता है। यौम मई के मौके पर बुध के रोज एशियाई दारकूमतों और यूरोपीय शहरों में मजदूर और कारकुन सड़कों पर निकल आए और बढ़ती हुई कीमतों और हुकूमत की लेबर पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया और मजदूरों के लिए ज्यादा हुकूक का मुतालबा किया। यौम मई मुतादिद ममालिक में मजदूरों के हुकूक के लिए मनाया जाता है। यौम मई की तकरीबात बहुत से लोगों की उमूमी माशी शिकायत या सियासी मुतालबात पेश करने का मौका भी फराहम करती हैं। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद नदी और नालों में शदीद तुगयानी आ गई है। बारिशों की वजह से गुज़श्ता चंद रोज के दौरान 9 अफराद हलाक भी हुए हैं। उधर सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में मंगल को शदीद तूफानी बारिशें हुई। बारिशों के सबब सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने मदीना में रेड अलर्ट जारी कर रखा है और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई की है। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी दिलचस्प खबरें, तजज़िये, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।